students, welcome to the biology class of StudyGist. Today we will continue with the chapter Health and Disease, and in this class the topic which will be discussed, these are the congenital disease, the acquired disease, that means the infectious as well as the non-infectious diseases. What are the infection agents, idea about the antibiotics, means of spread of infectious diseases, that means how the infectious diseases are transmitted, about the direct and indirect transmission of disease, what are the symptoms and sign of a disease, how the disease can be treated, that means the principles of treatment, how to kill the microbes, and lastly about the principles of prevention of the disease, that's the general ways as well as the specific ways. But before we start, let me remind you about our social media platforms like our YouTube channel StudyGist Academy. Do subscribe our channel, like us on Facebook, join our Telegram channel. The link is provided here and it looks like this. The name of the channel also you can see, StudyGist School 7 to 10. In this channel, each and every updates about the live classes as well as the study materials are available here. Follow us on Instagram and also join us through the WhatsApp community. The number is displayed over the screen, and for more updates do visit our website www.studygist.in. In Google Play Store right now our free app of StudyGist is available. It looks like this. It's a very user-friendly app, and through this app that live classes are being conducted. Apart from the live classes, the recorded classes of each and every subjects, these are also available, okay, and the study materials as well as the important notes are also you will be getting. So do download this app and install it now. This is how our YouTube channel looks like. So do subscribe our channel as I told you, and after that don't forget to hit the bell icon so that whenever any new videos will be uploaded in our channel, you will be getting the instant notification. This is how our Facebook page looks like. So like us on Facebook too for being united with us. So now let's get started. Congenital diseases. So the diseases which are present from our birth, when we are born, बर्थ टाइम से जो डिजीजेस हम लोगों के साथ प्रेजेंट रहता है, दोज आर नोन एज द कॉन्जेनिटल डिजीजेस, ओके. एंड हाउ दे आर कॉज्ड, व्हाई दे आर कॉज्ड ड्यू टू सम जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज और ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और मैल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन. कोई भी ऑर्गन अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक जो पाथवेज, जो प्रोसेसेस बॉडी में हमेशा डे एंड नाइट चलता है, इफ़ देर इज़ एनी एबनॉर्मलिटीज इन दैट, देन these congenital diseases may appear. They are permanent and generally they are not easily curable. As they are permanent, तो ये curable तो बिल्कुल भी नहीं है, okay? And they may be passed on to the children. ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में inherit भी कर सकता है, okay? नेक्स्ट द एक्वायर्ड डिजीज. ये तो कॉन्जेनिटल डिजीज जो बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है, और सम नेक्स्ट टाइप इज द एक्वायर्ड डिजीज जो हम लोग अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ड्यू टू म्यूटेशन और सडन चेंजिंग फैक्टर्स, एनीथिंग मे बी द रीजन, ओके. सो द डिजीजेज which we develop after our birth, those are known as the acquired diseases. अब वो communicable भी हो सकता है, that means the infectious one, and it can be as well as non-communicable or non-infectious, okay. So first we'll discuss about the infectious diseases. The infectious or the communicable diseases are caused by some biological agents or pathogens such as the viruses, the bacteria, the protozoans, helminthes, nematodes and the fungi. ये जो biological agents हैं, इसी से infectious diseases और communicable diseases फैलता है. These can rapidly spread from one person to another person by various means such as by physical contact, by air, water, food, insects, any vector. So ये जो है, these you can see, these are the different infectious agents जिसके थ्रू ये बहुत ही easily एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है बहुत ही
ईजिली फैलता है. ओके, नाउ कमिंग टू नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, दीज आर restricted to only the persons who are suffering from them. okay, जो है वो easily एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसे फैल नहीं जाता है, इन्फेक्शन फैल नहीं जाता है. ओके, दीज आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोज पर्सन. ये उसी पर्सन्स में रेस्ट्रिक्टेड रहता है जो इससे सफ़र कर रहा है. ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई रहेगा, कोई हेल्दी इंसान, तो उसको भी हो जाएगा. ओके, they may be caused from the lack of certain essential substances in our diet, like प्रोटीन की कमी की वजह से, या फिर lack of vitamins, lack of any specific minerals. From this the deficiency diseases जो होता है, कोई एक पर्टिकुलर मिनरल या विटामिन की कमी की वजह से जो डिजीज़ होता है वो कभी भी इन्फेक्शस नहीं हो सकता. दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस. एंड इससे अलावा, इसके अलावा जनरल वेयरिंग आउट और द डीजेनरेशन ऑफ टिश्यूज, कोई भी टिश्यू ओल्ड एज में डीजेनरेट हो जाता है, वो उसका डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है उसका, उससे भी हो सकता है. एंड फॉर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट, कोई भी पार्ट में सेल डिविजन ज़्यादा हुआ और बहुत ही रैपिडली वो पार्ट ग्रो कर गया, उससे भी ये डिजीज़ हो सकता है. डिफेक्ट्स इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन as well as injury or damage to any part, वो कुछ फैटल कंडीशन में चला जाए ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और वॉट एवर मे बी द रीज़न, इससे ये सारे चीज़ें से, ये सारे तरह से नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकता है. नाउ व्हाट आर द इन्फेक्शियस एजेंट्स? द ऑर्गेनिज्म दैट आर बेसिकली द कैरिंग vehicle. Okay, carrying vehicle, those are known as the infectious agents. So these are classified to a wide range of categories. Some of them may be the viruses. कुछ वायरस इस ये डिजीज़ को फैला सकता है, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो वायरस से फैल सकता है. Some may be carried by the bacteria. Fungi may also be the reason. Some unicellular organisms like the protozoans, means amoeba से हो सकता है, पैरामीशियम, ये सब भी ये इन्फेक्शियस एजेंट जैसा काम करता है. ओके, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द वायरसेस आर, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में. सो रिमेंबर इट वेरी वेल कि जो वायरस से जो कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलता है उसमें से उसका एग्जाम्पल्स है जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर जो होता है, एड्स जो होता है, ये सब वायरस बोर्न डिजीज़ है. नेक्स्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइफॉइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स, ये जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है. मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय फंगी. ये हमेशा याद रखना, कोई एलर्जिक इन्फेक्शन जो होता है वो मेनली या ज़्यादा से ज़्यादा 90% जो है इन केस वो फंगी से ही फैलता है. ओके, प्रोटोजोन्स में कॉज वेरी फेमिलियर डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड काला अजर. ये जो डिजीजेस है ये प्रोटोजोआन से फैलता है. वर्म्स टेंड टू कॉज अ वैरायटी ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस एंड एलिफेंटियासिस. पैर जो है एलिफेंटियासिस में, जैसे कि ये नाम एलिफेंट से काफ़ी सिमिलर है, तो यहाँ पर भी यही होता है. एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल है, राइट. सो जो पैर होता है वो इतना स्वेल कर जाता है कि एक पैर के साथ, एक लेग के साथ दूसरा लेग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है. ओके, एक पैर बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है और इसमें कैसे होता है, कुछ वर्म्स होता है, कुछ वर्म ये क्रिएट कर सकता है, ये इसका रीज़न है, इसको कॉज कर सकता है. ऑल द वायरसेस वी नो दैट दे लीव इनसाइड द होस्ट सेल्स whereas द बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू. ओके, वायरसेस जो है वो होस्ट बना के कोई ना कोई एनिमल की बॉडी में या कोई ना कोई प्लांट के बॉडी में वो रहता है, उसका जो बॉडी का मशीनरीज है उसको यूज़ करता है और अपना रिप्रोडक्शन करके नंबर बढ़ाता है. वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली और क्विकली, बट वर्म्स दे मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इफ वी कंपेयर द रेट ऑफ ग्रोथ. ओके, so if the diseases are there must be the remedy. So one of the very important and basic remedy is the antibiotics, जो हम लोग कॉमन टर्म्स में बहुत ज़्यादा सुनते आए हैं. तो कॉमन टर्म में ये एक्चुअली है क्या, कहाँ से आया है, कैसे ये आइडिया आता है, विल डिस्कस अबाउट दैट.
सो कॉमनली ये एंटीबायोटिक्स जो है वो बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक कर देता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये बायोकेमिकल कुछ पाथवेज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कंटिन्यू रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो कर पाए। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करता है, ये बैक्टीरियाज का जो इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवेज है इसी को ब्लॉक कर देता है ताकि वो बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। ओके, सिंस वायरसेस डू नॉट यूज दीज पाथवेज, सो इसीलिए एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क वेल अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। तो वायरस जो है, वायरस के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है क्योंकि एंटीबायोटिक्स का जो मोड ऑफ एक्शन है और वायरस का जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ अच्छे से मेल नहीं खाता है। ओके, सो इफ़ वी टेक वन एग्जाम्पल, इफ़ वी सपोज हैव अ कॉमन कोल्ड, कोई हम लोग को कॉमन कोल्ड हुआ है, हम में से किसी को भी मान लो, so taking of antibiotics doesn't reduce the severity or the duration of the disease। अगर वो डिजीज़ वायरस से कॉज हुआ है तो उस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द एक्शन और ऑन द इन्फेक्शन ड्यू टू द वायरस। Instead, our body secrete an antiviral protein called the interferon to combat the virus of cold। हम लोग की बॉडी में ही एंटीवायरल एक प्रोटीन है जिसका नाम है इंटरफेरॉन, ये रिलीज होता है ताकि वो वायरस मतलब जो कोल्ड वायरस की वजह से क्रिएट हुआ है उसको कम्बैट कर पाए। However, if we get a bacterial infection along with the viral cold, then taking antibiotics will help। मान लो कि दोनों एक साथ हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हुआ है और बैक्टीरिया के इफेक्ट से कोई हम लोग को फीवर भी आया है, मतलब दोनों ही एक साथ है, तब दिस एंटीबायोटिक मे वर्क कि तब वो उसका जो एग्रेसिव नेचर है उसको कम कर दे, उसको मार दे। ओके, इन दैट केस the antibiotic will work against the bacterial part of the infection, not the viral one। मतलब बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करने में antibiotic will help, but the viral infection will remain as it is because the antibiotics has no effect on the action of virus। okay, now देखते हैं कि ये infectious जो diseases है ये कैसे spread होता है, how they are spread। So we'll see कि some are known as airborne diseases जो कि एयर के थ्रू फैलता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, these are the examples of airborne diseases। Such disease causing microbes are spread throughout the air। एयर से फैलता है। The transmission of these microbes occur through the little droplets cuffed by an infected person who sneezes and coughs। हम लोग जब स्नीज करते हैं, स्नीजिंग होती है हम लोग की, या फिर कफ के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसके थ्रू एक हेल्दी पर्सन से और एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में अगर वो ड्रॉपलेट किसी तरह पहुंचा थ्रू स्नीजिंग, इफ़ यू आर नॉट कवरिंग आवर माउथ एंड स्नीजिंग ओपनली, देन इट कैन स्प्रेड। ओके, एंड दिस वे द एयरबोर्न डिजीजेस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस and has immense role in transmitting such communicable diseases। Next talking about the waterborne diseases, जैसे कि नाम है कि वाटर से फैलता है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉलेरा। जो हम लोग को कॉलेरा होता है या कॉलेरा के बारे में हम लोग ज़रूर सुने होंगे, दैट कॉलेरा इज़ द वन वेरी important example of waterborne disease। Infectious diseases can also spread through water। These occur when a stool from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera or amoebiasis। amoebiasis एक ऐसा डिजीज़ है जो कहाँ से होता है, जो एमीबा इन्फेक्शन से होता है। ओके, एमीबा इन्फेक्शन से होता है। तो उसमें क्या होता है, स्टूल जो हम लोग की रेक्टम से, एनस से जो स्टूल पास करते हैं हम लोग, उसमें कोई अगर इन्फेक्टेड गट हो, किसी का इन्फेक्शियस गट हो, वहाँ से it gets mixed with the somehow, suppose it gets mixed with the drinking water which is used and taken by the people, then क्या होगा, the cholera infested bacteria can enter into the new host through the water they are drinking
and can spread the disease, can cause the disease in the healthy persons too. Next, sexually transmitted diseases. So basic examples are syphilis and AIDS. AIDS के बारे में हम लोग ज़रूर सुने होंगे. So ये जो दोनों diseases हैं, these are transmitted by sexual contact from one person to another person. However, such sexually transmitted diseases are not spread by the casual physical contact. Casual physical contacts include the handshakes, hugs, स्पॉट्स. ये जो है किसी के साथ टच होना, हैंडशेक करना, हग करना, किसी को जब हम विश करते हैं तब हम लोग हैंडशेक करते हैं, तब हम लोग शाबाशी देते हैं किसी को, किसी के शोल्डर में हम लोग ऐसे हाथ रखते हैं, राइट. सो दीज आर कॉल्ड कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट. ये कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये नहीं होता है. ये जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट जो एक मैरिड कपल की तरह अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट करे तभी इस तरह के फिजिकल कांटेक्ट से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो फैल सकता है. ओके. नेक्स्ट, फॉर्माइट बोर्न डिजीजेस. आर्टिकल्स कमिंग इन कांटेक्ट with the patients such acts as the source of infection. See, suppose for the examples, the door handles, taps, garments, currency means the rupees, okay, utensils. ये सब जो है मतलब डोर हैंडल्स को टच करने से या टैप को, कपड़ा जो है, गारमेंट्स जो है, एक के कपड़ा दूसरा जन अगर पहने ऐसे, या फिर करेंसी मीन्स रुपीज़ और यूटेंसिल्स, इससे ये फॉर्माइट बोन डिजीजेस जो है वो उसका इन्फेक्शन बढ़ता है, ये होता है. ओके. नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू द वेक्टर्स. वेक्टर्स आर इन कॉमन वर्ड्स विल से सी हर एक चीज़ का जो ट्रांसमिशन है, मतलब जो ट्रांसफ़र है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हर एक चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए होता है? व्हीकल्स होता है. तो यहाँ पर ये डिजीज़ेस हैं, डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए भी कोई ना कोई व्हीकल ज़रूरत होता है. अब यहाँ पर व्हीकल्स कौन है? व्हीकल्स आर द एजेंट्स. सो मैनी एनिमल्स विच लिव with us may carry diseases, and these animals can transfer the infecting agents from a sick person to a potential host or healthy person जो कि prone to be a host. Thus these animals act as these are called intermediators or the vectors. Okay, जो जिससे एक infectious कोई इन्फेक्शस डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो कैरी होता हुआ जाता है. दोज आर कॉल्ड वेक्टर्स एंड दे आर बेसिकली द कैरियर्स ऑफ अ डिजीज और एन इन्फेक्शन. लाइक द मस्क्यूटोज, फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटोज more specifically are the vector of a disease called malaria. In many species of mosquitoes, the females need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. Hence, इसीलिए they feed on many warm-blooded animals including the human. We are the warm-blooded animals. Okay. Now we are going to discuss about how the disease gets transmitted. Like firstly through direct transmission and secondly through indirect transmission. So direct transmission, how? Contact with infected person, AIDS जैसे इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आके, या फिर कांटेक्ट विद द सॉइल जैसे कि टिटेनस होता है. नेक्स्ट, एनिमल बाइट्स, रेबीज एनिमल बाइट से तो हो ही सकता है. ओके. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स by which through direct contact the direct transmission of disease may occur. Next is how disease can occur through the indirect transmission. See, it can happen through the vectors like malaria, through the contaminated food and water, amoebiasis and hepatitis, like air transmitted disease and formite borne. ये सब एग्जाम्पल है जिससे कि indirect transmission होता है इससे. सिम्टम्स ऑफ डिजीज़. एक डिजीज़ का सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है, कैसे पता चलेगा कि डिजीज़ हुआ है या कौन सा डिजीज़ हुआ है. 100% how we will get to know that the person is suffering from a disease or not. See, firstly,
the point of entry and the place of infection of the microbe inside the human body. This is very important कि जहाँ से कहाँ से infection शुरू होता है और microbes का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री कहाँ से होती है बॉडी में, जहाँ से ये डिजीज शुरू होता है और फिर ट्रांसमिट होते होते फैल जाता है. ओके, our body is quite large in comparison to any type of microbes. Definitely microbes are, we cannot see even through our bare naked eyes. So microbes के हिसाब से हम लोग की बॉडी का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है. So there are many possible areas, organs or the tissues within our body through which microbe may enter. Different species or the of microbes appear to have evolved to move to different parts of the body. In part, this selection is related to their point of entry. एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि अगर the microbes enter from the air via our nose. Suppose nose के थ्रू, एयर के थ्रू नोज में कोई माइक्रोब अंदर एंटर किया है, अंदर अगर एंटर करेगा, सो डेफिनेटली वेयर इन विच डायरेक्शन दे आर गोइंग, दे विल बी गोइंग, दे आर लाइकली टू गो टूवर्ड्स द लंग्स ओनली. ओके, and this happens where in case of bacteria which are the main cause of the tuberculosis or in short TB of the lungs. फिर अगर microbes मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू एंटर कर रहा है, then they can stay in the lining of the gut and they can cause typhoid causing bacteria, right? So these microbes can also go to the liver like the viruses that can cause jaundice or hepatitis B. However, this pattern is not at all followed by all other microbes. For example, if we talk about the infection by the HIV virus, जिससे AIDS होता है, HIV virus के थ्रू कौन सा डिजीज होता है? AIDS होता है. ओके, इट टेक्स प्लेस वाया द सेक्शुअल ऑर्गेन्स ओनली. ये कोई एयरबोर्न नहीं है या फिर वाटरबोर्न नहीं है. सो इसी तरह मलेरिया और एक एग्जाम्पल है, मलेरिया कॉजिंग जो प्रोटोजोआ है, इट एंटर्स थ्रू अ मस्क्यूटो बाइट बट इट फर्स्ट गोज टू द लिवर सेल्स एंड देन टू द RBC, रेड ब्लड सेल, उसको डिस्ट्रॉय करता है. सिमिलरली द वायरस कॉजिंग जापानीज ब्रेन फीवर जो होता है या फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें मस्कीटो बाइट के थ्रू एंटर करता है बट इट डायरेक्टली गोज टू इन्फेक्ट द ब्रेन, नॉट टू द लिवर, नॉट टू द RBC बट डायरेक्टली टू द CNS, मेन पार्ट ऑफ द CNS, that is the brain. Now we'll talk about the signs and symptoms. Symptoms are what? Symptoms are the evidences that point to the presence of disease and they are visible in the form of structural as well as functional changes in our body or the body parts. So basically what they are the indicators from which we can understand that something is wrong. मतलब symptoms जो है वो एक ऐसा evidence है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डिजीज़ का प्रेजेंस या एब्सेंस को, कोई डिजीज़ प्रेजेंट है या एब्सेंस है, उसको हम लोग समझ सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड एंड लाइकवाइज वी कैन टेक स्टेप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स ओनली. कोई भी डिजीज़ हम लोग नॉर्मली डॉक्टर के पास हर दिन नहीं चले जाते कि वी वॉन्ट टू डू आवर चेकअप, राइट. वेन एवर वी सी एनी एबनॉर्मल सिम्टम्स, उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि हम लोग को ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम लोग को इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए. देन द डॉक्टर चेक्स अस, डॉक्टर चेक अस एंड डिसाइड. ओके, सो द फिजिशियंस सर्च फॉर डेफिनेट क्लूज और साइंस. कोई भी नतीजे से, मतलब कोई भी टेस्ट करवाने से पहले वो डॉक्टर्स नॉर्मल साइंस और सिम्टम्स जो है उसको देख के डिसाइड करते हैं कि किस तरह का डिजीज़ हो सकता है, किस तरह का मेडिकेशन होना चाहिए, किस तरह का टेस्ट करवानी चाहिए. उसके हिसाब से ही फादर जो मेडिकल प्रोसेस है वो होता है. सो इसीलिए दे यूज सर्टन इंस्ट्रूमेंट एंड कंडक्ट लेबोरेटरी टेस्ट, राइट. किसके लिए? टू पिन पॉइंट द कॉज ऑफ द डिजीज. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, देयर आर two ways to treat infectious diseases. One is what? To reduce the effects of the disease and the other way is to kill the cause of the disease. एक है डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट है उसको कम करना
और दूसरा है डिजीज का जो कॉज है, मतलब जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कॉज कर रहा हो उसको मार देना. सो फॉर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट we can provide the treatments that will reduce the symptoms, right? For example, we can take medicines which is having the antibiotics. So antigens, that means the microbes will be killed, will be suppose if we take proper medication, then अगर हम लोग को फीवर है वो कम हो जाएगा, bring down the fever. पेन हो रहा है तो वो रिड्यूस होगा. ओके, वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी, और एनर्जी से हम लोग उसके अगेंस्ट फाइट कर पाए, उसका इफेक्ट जो है उसको कम कर दे. सो सच काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ इज इनएडिक्वेट समटाइम्स. कभी कभी जो है ये जो नॉर्मल मेडिकेशन या रेस्ट लेने से हम लोग ठीक नहीं हो जाते हैं, राइट? सिंस इट विल नॉट मेक द पैथोजन टू गो अवे, सो द डिजीज विल नॉट बी क्योर्ड. फॉर दैट वी हैव टू किल द माइक्रोब इटसेल्फ. सिर्फ उसका इफेक्ट कम करने से नहीं होता है, उसको रैदर किल करना होता है. सो कैसे किल करेंगे? सी, द पैथोजेनिक माइक्रोब्स कैन बी किल्ड बाय टू कॉमन मेथड्स. One way is to use the medicines or the antibiotics to kill it. In fact, we have to choose a drug, proper drug means proper medicine which may work properly only on that particular pathogen or only on that particular parasite. If that drug affects the host's metabolism, then our purpose of treatment will be defeated. मतलब कोई ऐसा मेडिकेशन हम लोग लें जिससे, या कोई ऐसा ड्रग हम लोग यूज़ करें जिससे हम लोग का बॉडी, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, द पर्सन हु इज सफरिंग, ही इज़ अ विक्टिम, वही होस्ट है, उसका बॉडी, हम लोग की बॉडी में ही अगर अपना मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड हो जाए तो मतलब जिस पर्पज से हम लोग ट्रीटमेंट को शुरू किए थे वो ही नहीं हुआ, राइट? सो आवर सेल्स मेक न्यू सब्सटेंसेस बाय अ मैकेनिज्म विच इज डिफरेंट from that used by a pathogenic bacteria. So we have to find out a drug that can block their activity. उन लोग का एक्टिविटी, जो बैक्टीरिया का जो एक्टिविटीज है या माइक्रोब्स का जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है, राइट? वी हैव टू डू दैट. सो देयर आर ड्रग्स दैट कैन किल द प्रोटोजोआ which is such as the malarial parasite. Now there are principles of prevention of disease. Firstly we'll talk about the general ways. कैसे हम लोग कर सकते हैं जनरल वे में एक इन्फेक्शियस डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे कि लिविंग कंडीशंस जो है दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड, वैसे एरियाज में हम लोग रह सकते हैं. टू प्रिवेंट द एक्सपोजर टू वाटरबोर्न जो डिजीजेज हैं, वाटरबोर्न माइक्रोब, उससे सेफ रहने के लिए हम लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना होगा हम लोगों को. और जो वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस है उसको अवॉइड करने के लिए वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट एज इट वुड नॉट अलाउ द मस्क्यूटोज फॉर द ब्रीडिंग पर्पस. और अगर हम लोग स्पेसिफिक वेज के बारे में बात करें, सो इफ समवन सपोज इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, इट इज लाइकली that the children sitting around will be exposed to the infection, but not all of them will catch the infection. This may be due to a strong immune system. So specific prevention कैसे होगा? कोई भी अगर डिजीज पर्सन के पास में कोई बैठा है, ऐसा कभी ये नेसेसरी नहीं कि उससे उसको ये हो जाएगा. कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है? अगर जो पास में बैठा है हेल्दी पर्सन है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो. चिल्ड्रन यूजुअली एस्केप cold and cough infection because their immune system normally fights off the microbes. These cells become active every time disease causing microbes enter the body. जब भी disease causing microbes enter करता है हम लोग की बॉडी में एक नेचुरल इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप कर जाता है. मतलब हम लोग की ये मान लो बॉडी है, यहाँ पर कोई भी एंटीजन एंट्री किया, दिस इज द एंटीजन, तो यहाँ पर क्या होता है, उसको रोकने के लिए एक हम लोग की बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो जाता है विच मेक्स आवर इम्यून सिस्टम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग. नॉर्मली इम्यून सेल्स, दैट मीन्स इम्यून सेल्स कौन सा होता है? WBCs, जो वाइट ब्लड सेल्स होता है, दोज आर द इम्यून सेल्स. ओके, दे मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन long before it assumes major proportions. If the spread of the infecting microbes are controlled, then the symptoms
and the effects of a disease will be minor. मतलब कोई अगर ऐसा हुआ कि the spread of the infecting microbes are controlled, infecting microbes का spread को अगर control किया जाए, control अगर हम कर सकते हैं, तो डिजीज़ का जो इफेक्ट या जो सिम्टम्स होगा वो कम होता जाएगा. और ये भी कह सकते हैं कि एक्सपोजर टू इन्फेक्शन और एन इन्फेक्शियस माइक्रोब्स doesn't necessarily tell that the symptoms are not noticeable, right? So one way of looking at severe infectious disease is that it represents a failure of the immune system, right? So the functioning of the immune system, like any other person in the body, will not be good enough if proper and sufficient nourishment and food is not available. फूड अगर हम लोग प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, तो ये प्रॉपर सफिशिएंट नरिशमेंट अगर नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग जो इम्यून सिस्टम है, नेचुरल इम्यून सिस्टम, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ फ्यू मोर टॉपिक्स. टिल देन, थैंक यू.